film has been postponed for 3 weeks on 1st of February. But the reason I would like the director, the creative guy, I think he's the best man to answer the question. Sir, please. Thank you. Yeah, well, we had to, I wouldn't say unfortunately, we had to postpone the release by 3 weeks. We have decided to. Because, to put in a word, the VFX. You see, the VFX that we are trying to achieve in this film are top class. I mean, there's something that the Hindi audiences would never have seen till now, I promise you that. And to trying to achieve that is a little time consuming. We didn't want to get into the release haphazardly and with something that is not up to the mark or something that we are not satisfied with. Sachin and me both are not. We were sure that we didn't want to release the film. Ali, you have come up first. Sorry. So, to coming back to where I was, that because the VFX, we need the VFX to be top class, and we didn't want to release anything that is not up to the mark or something that we are not satisfied with. And hence, I requested Sachin that we might just take time, we might have, it's miscalculated the time that's taking, the VFX is taking. So Sachin was very gracious, and we have hence postponed it by 3 weeks, and that's it. So it's 1st of February now. That's not the event. Alright, so आप बात कर ही रहे थे तो मैं आपसे अभी पूछना चाहूंगी कि आपका ये लगाव लेकिन हॉरर फिल्म से क्या है? मतलब हमसे पूछे तो हम तो दूर भागते हैं ऐसी सब स्टोरीज से, पर आपको क्या खींचता है? भूत खींचते हैं। भूत खींचते हैं आपको? मुझे डरना और डराना अच्छा लगता है। और अब क्या करूँ? ये देखो वहाँ खड़ी है, मुझे देख रही है। भूत क्या? I have been fortunate. Like my first film, when Vikram Bhatt, my friend, he gave me my first film, 1920, Evil Returns. I had never shot horror before that. And I was skeptical because horror is very difficult. It's difficult to scare people, though I know that I scare people very easily, but that's me personally. But it's difficult to scare people on screen. But 1920 did well, Evil Returns did well. Ekta gave me Ragini MMS2, which did better, and Alone after that, which also did very well. Oh yes. So, well, it's been the audience and the industry expect horror from me, and so be it. But it's not that I don't have other stories to tell. I have many other stories, and hopefully one day I will make something which is non-horror also. Okay. But till now, yes, this is my 4th horror film in succession. चलिए, मैं तो कहती हूँ कि आपको हॉरर ही बनाना चाहिए because as you said, people are loving it. सचिन, आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी, if I'm not wrong, this is your first horror film जिसमें आप एकदम पूरी तरह से इस genre में घुस रहे हैं. And I also heard that you actually shot at locations which were quite haunted. या फिर -2 degrees में shoot करना वैसे ही लगता है कि वो -15. -15? खुद भूत नहीं बन गए आप ऐसे shoot करते हुए? तो कोई भी भूत हो जाए. Exactly. Well, yes, it is my first horror film, and मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करता हूँ. पहले मैंने एक्शन किया, फिर उसके बाद ड्रामा, सटायर, कॉमेडी किया, फिर एक्शन किया. See, horror is something that I always enjoy. मेरा ये सबसे favorite genre है, to be honest. लोगों को पता नहीं है, but something that I really enjoy. I'm an avid follower of horror films. तो मुझे जब भूषण से बात हुई, पहले भी हमारी काफ़ी दफ़े बात हुई कि let's do something together. But जब इस आइडिया पर डिस्कस हुआ, विक्रम was in between, and he said एक अनोखा आइडिया है, something new, something completely different, horror में नहीं है, cliche नहीं है. तो मैंने बोला चलो देखते हैं. And the moment me and Bhushan spoke, I think less than 3 minutes it took to finalize this movie. Wow. And that's how the journey began. See, horror फिल्मों में मैंने जो नोटिस किया है, अभी तक के हिंदुस्तान में या कहीं पे भी वर्ल्ड में क्लीशे हॉरर फिल्म बनती है, बट उनका प्रेजेंटेशन, उनका स्क्रीन प्ले, एक कहानी होनी बहुत ज़रूरी होती है, जो इस फिल्म में मुझे प्रयास किया है. The point was always about to make a good horror film with a great subject, great storyline, great screenplay, and how to create the startle effects in the right places. मतलब audience will be in tremendous intrigue कि कब क्या हो रहा है. That is what Amalas is all about. मैं कहती हूँ कि आपको ऑडियंस को खड़े रखना चाहिए अपनी फिल्म के दौरान, क्योंकि बैठ तो वैसे भी नहीं पाएंगे. The moment they'll start jumping. The idea is to make a edge of the seat thriller, horror, and that's what Amalas. Absolutely, and I think trailer ने काफी कुछ दिखा दिया हमें already.
Nargis, I was waiting to just say this to you. We missed you. लंबे समय के बाद आप यहाँ पर आई हैं and let me tell all the media members कि आप actually लंदन से सिर्फ इस फिल्म के प्रमोशन के लिए यहाँ पर आज ही सुबह आई हैं. So first of all, thank you so much. कैसी हैं आप? I'm good. So nice that you missed me. Thank you. We really missed you with all our heart. क्या सोचना है आपका इस फिल्म के बारे में? How dear is it to you? How close to your heart is this film? Because आप काफी एक break के बाद आ रही हैं. So what are you feeling? Well, first off, horror is my favorite genre film. I will say, when you gave me this opportunity to do this film, I was so excited because it was like a dream come true. You know, you love watching horror, but to be in it is something totally different. And I was so excited because I kind of get scared when I watch horror, but not really that much since I watch it so much. So I was like, okay, what is it going to be like being in one? Well, let me tell you, I got scared. And it was good. So I can't wait for everyone to see it. Yeah, she scared us a lot. I scared you a lot too. No, you should have seen her face when I was narrating the film to her. She was listening to me as if I was completely gone. She loved the film, and that's why the moment I finished narrating, she was on board. I remember, yeah, I was so into it. I was like, oh my god, yeah. Yeah, she was amazing. Wow. And she even mentioned कि उनको डर लगता नहीं है और वो डर गई मतलब कुछ तो है. क्या बात है. विवान, एक सवाल जो कि मुझे पता है कि आप लोगों को तैयार होना चाहिए, मीडिया भी सबसे यही पूछने वाली है कि जब आप ऐसी एक फिल्म शूट कर रहे थे तो क्या आपके साथ में सच में भी ऐसे कोई इंसिडेंट हुए which you know just left you like you know spellbound? काफी बोरिंग है, काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, क्योंकि जो हमारी रूम थी, आई थिंक वी आर जॉइनिंग रूम्स, एंड वहाँ से थ्रू द रूम एक एलिवेटर था जिसको आई डिडंट इवन नो दैट देयर वाज एन एलिवेटर, एंड सडनली आई सी कोई ऊपर जा रहा है, इट लुक्स लाइक समबडी इज फ्लोटिंग, बिकॉज़ कांच की एलिवेटर, और एक बुड्ढी है, बुड्ढी नहीं होना चाहिए, एल्डरली लेडी जा रही है ऊपर, और विद लाइक टू डॉग्स लाइक दिस, एंड it's quite scary. Yeah, she's very white, and suddenly she would like come into the room and like, oh, this pillow is very expensive, please hide it, that kind of thing. So it was quite funny because we'd be doing late night shoot kar rahe honge, obviously nights and sorry, and you know sometimes you're like waiting in the room and suddenly one old lady has walked into the room and she's changing the sheets or doing something randomly. So काफी डरावना. Wow. Okay. Many more such stories. Responsible. He's my friend, old friend. Yeah. I can say because he's got white hair now. That's just for the effect. No, There are see, no मुझे effects. दो तीन लालच थी ये फिल्म करने के लिए. एक तो डेफिनेटली भूषण. Okay, we go long ago. How long ago? God knows how long ago. And I tried male character. No, yeah. I tried male characters, female characters also. तो इस बार लगा था भूत का कुछ देगा मुझे. तो वैसा तो नहीं हुआ. एंड ये जॉनर जैसे सब कह रहे हैं, हम हमेशा देखते बचपन से एक बोलते ना, डरते सब है लेकिन देखते सब है, पर इसमें काम करने का एक अलग ही मजा है, इसका एक लालच है. बचपन से हम जो फिल्में देखते थे, मुझे भी ऐसे लगा था मेरे भी कुछ ऐसे सीन्स होंगे स्विमिंग पूल में, पानी में नहा रहा हूँ तो अचानक लाल पानी आ रहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ. किसी को इंटरेस्ट नहीं है. तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ. He gave me a very interesting character and trust me, उसको करने में भी बहुत मजा आया. मैं इतना डरता नहीं frankly, मतलब ये सब चीजों से कहते हैं ना कि ये जहन में अगर आपके आ गया तो आप यहाँ खड़े भी डर सकते हो. बिल्कुल. अगर नहीं आया तो नहीं आया. पर जो लोकेशन इन्होंने ढूंढा था, जहाँ ले गए थे ये, वो जो कैसल था वो, हाँ वो पता नहीं कहाँ, एक तो मतलब लंदन जा रहे हैं, वहाँ से भी ऐसे 2.5-3 मतलब घंटे दूर हम कहाँ ब्राइटलैंड के जहाँ पे भी जहाँ थे, वो कैसल बहुत ही डरावना था बिल्कुल. उसमें एक बुढ़ी रहती थी और उसके 2 बेटे, ऐसा मैंने सुना, बेटे को कभी नहीं देखा मैं. आप एक बुढ़ी आती थी बिल्कुल सफेद बाल में, पता नहीं सफेद बाल का क्या ऑब्सेशन है, उनके भी आते थे. उनका एक कुत्ता था, तो कुत्ते वो लात मारो ना तो लंदन से ईस्ट लंदन, वेस्ट लंदन कहीं भी पहुंच जाए, इतना छोटा सा उनका वो एक डॉग था. एंड उसको और किसी चीज से नहीं है, he said, मतलब राइटली he said कि उसको सिर्फ she was obsessed with her antiques. उससे भी पुराने एंटीक्स उसके पास पड़े थे. You know how old is this? You get up, don't sit on the sheet. ये वो बस पूरे
हम जितने दिन मैं वहाँ था वो उठा लेती थी, फिर सचिन को देखते थे, सचिन ऐसे करता था तो हम भी ऐसे चुप हो जाते थे। एंड एक्चुअली वो आप जब फिल्म देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा इतना उसमें ऐसा बंगला है, उन्होंने ऐसे जगह लोकेशन इन्होंने फाइनलाइज किया था जहाँ लाइटिंग की भी जरूरत नहीं थी। और मतलब वो जो पैसेजेस उसके थे रूम्स के बीच में, एक सीन इनको शूट करना था, ठंड में ले गए थे -2 एंड फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ वहाँ पर पढ़ता था कि एक्चुअल आपके जो मोबाइल पे जब आप टेम्परेचर देखते हो तो -2 विद द फील ऑफ -7, मतलब है ना -3, हाँ विद द रियल फील, वैसे जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं -31 विद द फील ऑफ 45 तो +45, तो वहाँ का -2 विद फील ऑफ -11 ऐसे। तो इनको सिर्फ एक कैंडल मूव हो रहा है ऐसे एक्सटीरियर से शूट करना था। एंड जो बच्चे एडीज थे वो बोले कि सर अभी पूरा लाइट ऑफ करना है अंदर का, तो यू वांट टू कम आउट, तो यू वांट टू सिट इनसाइड। मैं बोला यार बाहर तो बहुत ठंड है, मैं यहीं बैठता आराम से रूम के अंदर ही। एंड बोले मूवमेंट कुछ मत करना, एंड एक बंदा खाली कैंडल ले जा रहा है। ट्रस्ट मी वो सारा मतलब उन्होंने कैसल को अंदर से इंटीरियर को पूरा डार्क कर दिया था। एंड पता है कि लोग बैठे हुए थे, I couldn't sit there for 30 seconds also. हाँ, जबकि हम एक्टर हैं, हमको पता है कुछ नहीं है ये, पर इतना तो जो परफॉर्मेंस आपको देखोगे स्क्रीन पे वो एक्चुअल रियल है, क्योंकि वो लोकेशन भी एक्चुअली हॉन्टेड है। बता दिया है कि अब तो और ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। सबको अभी बताया, पहले नहीं बताया। विक्रम, we need to talk. Where is the producer? So without much ado, I think we should let the media ask a few questions. The stage is open for media question and answers. So can we pass a mic, please? Let's please stick to the movie. Thank you. जी जी, कौन सी ऐसी फिल्म रही है जिसने आपको डराया हो या आपको लगा कि इस Exorcist. The Exorcist. वो मैं आई थिंक 17-18 साल का था जब मैंने देखी थी फिल्म, और मैंने दिन में देखी थी, सुबह सुबह देखी। मेरे दोस्त विक्रम भट्ट और मैंने साथ में देखी थी, वो भी हॉरर फिल्म बनाता था क्या, लेकिन हम सुबह दिन में देखने के बाद भी डर गए थे, बावजूद डर गए थे। दिन में इसलिए देखी थी ताकि डरे नहीं शायद, लेकिन फट गई, बहुत हालत खराब हो गई। एक्सॉर्सिस्ट फर्स्ट, ओमेन थी डरावनी, लेकिन एक्सॉर्सिस्ट सचिन, जाहिर सी बात है कि जिस तरह की फिल्में आपने अलग अलग तरह से रीइन्वेंट किया है खुद को, क्या ऐसी चीज़ है जो आप इस फिल्म से लेकर निकले हैं या देख पा रहे हैं कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा इसमें संभावनाएं हैं या चीज़ें समझ में आ सकती हैं? Well, जैसे आप देख रहे हैं सिनेमा प्रोग्रेस कर रहा है, काफ़ी किस्म के नए नए टेक्नोलॉजीज फिल्मों में आ रहे हैं। मतलब पहले इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था कि आप VFX पे फोकस कीजिए या आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए। जिस तरह बॉलीवुड में फिल्मों में यूटिलाइज किया जाता है, उसी तरह इंडिया में भी अब यूज़ किया जाता है। तो वो एक चीज़ मैंने एक नयापन देखी, और वो इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। यू नो, द फिल्म्स दैट हैव डन वेरी वेल इन 2018, अगर आप देखेंगे बाहुबली है या पद्मावती है, ऑल VFX ग्रेजुएट। मतलब जिस तरह हम सुपर हीरो की फिल्म अमेरिका में देखते थे, उस लाइक आई मीन उस तरह की, उस कैलिबर की फिल्म। दिस वाज माय फर्स्ट इनिशिएटिव। ये मेरा पहला मौका पड़ा कि मैं टेक्नोलॉजी को सही ढंग से सिनेमा में यूज़ कर पाऊँ। नरगिस, आपके साथ कितना मिस किया इस बीच आपने भारत को और इंडियन सिनेमा को, फिल्मों को? और जैसे आपने शुरू में ही कहा कि बहुत सारी हॉरर फिल्में आप देखते हैं, आपका फेवरेट जॉनर है। तो आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म्स हैं हॉरर जॉनर? So first I'll say that I miss India very much, and it's so nice to be back, and I was super smiley and happy. I actually just landed today, so I'm jet lagging. And my favorite horror film, you know, it's kind of difficult because I don't have a favorite, but I don't know. Let's say The Conjuring. Yeah, The Conjuring was good.
Haunting in Connecticut. Yeah. And there was Get Out. It Follows. I mean, there's so many. And now Among Us. Hey! That's my favorite. My question to Sachin sir. Any memorable moments from the set you would like to share? Well, the entire experience of shooting a horror film is a memory for itself. मतलब एक ऐसी लोकेशन पे जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, एक ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे अलग-अलग किस्म के एक्टर्स हैं, सबका अलग-अलग तरीका शूट करने का, the entire cast and crew shooting experience. I mean, the most memorable for me would be the horror sequences. मतलब एक तो पता था कि ये जगह हॉन्टेड है, उसके बाद अगर सबको बताएंगे तो सारे डर जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा, और खुद जानते हुए किसी और को बता नहीं सकते, was itself very horrifying experience for me. But at the end, those moments, those horror sequences, मतलब जब हम लोग शूट कर रहे हैं तो वो इतना डरावना था, जब उसको एडिट पे देखने वो इतना डरावना था, जब वो टेक्नोलॉजी या VFX के साथ आप देखोगे, it's a experience that I've never seen before. So whole experience of shooting the film was a memorable experience. कोशिश बहुत की इंटरनेट देखने की, ढूंढने की, मिला नहीं ऐसा कुछ, but yes, एक मतलब बहुत छोटी-छोटी चीजें दिखाई दी, in the sense not on the edit table but otherwise while shooting the film. You know, कभी अचानक ही क्योंकि 2 सेक्शन उस घर के बंद थे जहाँ पे हमको बिल्कुल अलाउड नहीं था जाना है, हमको उस तरह जाना, तो एक इंट्रीग था कि एक बार जाके देखते हैं वहाँ पे उस तरफ क्या छत पे जाके, तो मैंने एक बार ट्रायल भी किया, but while shooting in the nights when I was not shooting, Bhushan told me about couple of incidents that took place. मतलब सब जो शूटिंग के इक्विपमेंट्स हैं सडनली कुछ ऑफ हो जाते थे, कुछ ऑन हो जाते थे, बट कोई रीजन नहीं होता, मतलब कोई रीजन नहीं होता था, मतलब एवरीथिंग है, सब जनरेटर में फ्यूल भरा हुआ है, टेक्नीशियंस बराबर लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, बट कोई रीजन नहीं होता था चीजें बंद हो जाने का, फिर उनको स्टार्ट करो, मतलब कुछ टाइम पे गैप्स पड़ते थे शूटिंग, नो रीजन फॉर नो रीजन। क्या है ना, देखिए अभी साल में 52 फ्राइडे ही होते हैं और पिक्चर है तो बहुत ज़्यादा नहीं होती, पिक्चर एक क्लैश होना तो रात भी है, वी वर एक्सपेक्टिंग अदर फिल्म्स टू गेट अ, लेकिन उनका जॉनरा अलग है, हमारी फिल्म का जॉनरा अलग है। बात वही हो गई जैसा कि एक ही दिन पे अगर टीवी पे टेनिस मैच हो और क्रिकेट मैच भी हो और फुटबॉल भी हो, तो क्रिकेट वाले क्रिकेट देखेंगे, टेनिस वाले टेनिस देखेंगे और फुटबॉल वाले फुटबॉल देखेंगे, तो ये टेंशन था ही नहीं मुझे। हॉरर वाले जो मुझे पहले दिन नहीं आते, दूसरे दिन तीसरे दिन आते, और जब आते हैं जब पता चलता हूँ कि पिक्चर अच्छी है तब भी आ जाते हैं, तो मुझे रिलीज डेट मतलब सचिन वी वर नॉट वरीड अबाउट दैट, नॉट कि मतलब ज़्यादा कंपटीशन है, कंपटीशन तो जून मई एंड में ही खत्म हो चुका, सो it's taken such a long time to release the film only purely because of VFX, technology, SFX, जो भी आप बोलोगे, post production was the major reason. मतलब काफी दफा contemplate किया, I mean all the producers everybody sat and decided कि चलो target करते हैं, we were first earlier targeting October November, वो नहीं हुआ, VFX delay है और better करना है, let's get some technicians from US, use them, let's get some people, so हर बार जो रीजन रहा है it was always VFX. I mean इस बार भी 11th I said we were very excited, promotion we started off putting out the trailer, teaser, everything, but same reason again, it is reached to I would say 85-90%. फिल्म में हमेशा comparisons होता है, अमेरिका में हॉरर फिल्में बनती है, हॉलीवुड में बनती है, हम उस स्टैंडर्ड की नहीं बनाते हैं, हमारी सेम अभी ठीक है, इंडियन हॉरर फिल्म्स है, ऑडियंस खास करके जब भी देखते हैं यार सेम घिसे-पिटी, वही गाने होंगे, वही हॉरर होगा, वही भूत होगा, थोड़ा डराएगा और चला जाएगा, स्टोरी नहीं होती हॉरर फिल्मों में। अरे हॉलीवुड की वो कॉन्जरिंग को देखो, उसमें उसका इफेक्ट्स देखो, क्या रियल लग रहा था। सी ऑल दीज फैक्टर्स व्हिच इज देयर इन एन ऑडियंस माइंड, that is what we are trying to change with this film. Okay, even India can make horror films. India has classic horror films like Mahal, which were made in 1960s and 70s. Then we had Raat, which was done in the 90s. We've had such great films. That is some God and good, and there must be hell and evil. So I believe. Sachin, yeah.
सर मेरा सवाल आपसे है भाई, जब आप देखते हैं स्केरियस वीएफएक्स और वीएफएक्स का आपने बहुत ज़्यादा जिक्र किया, लाइक नेवर सीन बिफोर, मतलब कहीं आपको ये लगता है कि जब मैं बॉलीवुड की बात करता हूँ या मैं हॉलीवुड की बात करता हूँ, स्पेशली मैं बॉलीवुड की बात करूँगी क्योंकि हिंदी सिनेमा की हम बात कर रहे हैं, क्या हम अब तक वो कर नहीं पाए हैं जो आप करने जा रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से? क्योंकि वीएफएक्स पे ये नहीं कि मैंने कुछ अलग कुछ क्रिएट कर दिया, मतलब कोई फैंटेसी क्रिएट कर दी। सो इन दिस फिल्म अमावा स्पेसिफिकली, तो जो भी हमारे सीक्वेंसेस हैं या कहानी को जो नरेशन क्रिएट किया, तो उसको बिलीवेबल करना हैज बीन आवर टास्क। और वो चीज़ काफ़ी शॉर्टकमिंग्स में देख रहा हूँ कि हमारी बॉलीवुड हॉरर फिल्मों में रहा, मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं और जो दिखता है वो बहुत अलग होता है। सो दैट इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर एंड इंश्योर कि इसमें ऐसा ना, इसमें वो इफेक्ट मिले, रियल बिलीवेबल हॉरर फिल्म लगे, इज व्हाट वी आर ट्राइंग। वैसे अगर आप देखेंगे बाहुबली है या पद्मावत है, उन्होंने जो किया वीएफएक्स, आई मीन वी आर नॉट एनी शॉर्ट ऑफ मेकिंग सच बिग ग्रेट मूवीज लाइक द वे हॉलीवुड हैज एवर डन। So we are as a country, as cinema, Bollywood is growing to that level, and I think आने वाले टाइमों में आप जो फिल्में देखेंगे, it's going to be at par of what Hollywood cinema is making. Any more questions?